Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. In my previous lecture, I told you about the computer network, about the transmission media and wireless communication. And today we are going to discuss about the ISDN, Integrated Services of Digital Networking. So what is ISDN? ISDN क्या है कि there are set of communication standards for simultaneously digital transmission of voice, video, data and other network services over the traditional circuits of the public switch telephone network. पहले क्या होता था कि पहले हम डिजिटल डेटा को मॉडेम के थ्रू सेंड करते थे, फिर मॉडेम उसको एनालॉग में चेंज करता था, फिर उस एनालॉग को अगेन हम मॉडेम के थ्रू सेंड करते थे, फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट होके फिर वो इंटरनेट के थ्रू हमको प्रोवाइड होता था. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स मोर टाइम और जो डेटा की क्वालिटी थी वो डिक्रीज़ हो जाती थी. सो टू ओवरकम दिस आइडिया ISDN को डेवलप किया गया. ISDN को फर्स्ट डिफ़ाइन किया था CCITT रेड बुक में 1988 में. तो ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, डेटा, वीडियो, okay, and other network services simultaneously with greater efficiency. This is a circuit switch telephone network system which also provide access to packet switch network. पहले हम लोग सिर्फ वॉइस सेंड कर सकते थे, मतलब एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते थे, बट ISDN साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में ही हम वॉइस भी सेंड कर सकते हैं, डेटा भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. Before integrated services digital network ISDN, the telephone system was seen as a way to transmit voice with some special services available for data. ISDN से पहले जो हम ऑपरेशन यूज़ करते थे, जो हम प्रोसेस यूज़ करते थे डेटा को सेंड करने के लिए विद सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, सो दैट वाज टेलीफोन. The main feature of ISDN is that it can integrate speech and data on the same lines which were not available in the classic telephone systems. ISDN का मेन फीचर क्या है कि इसके थ्रू हम स्पीच एंड डेटा बोथ हम एक ही लाइन में सेंड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि पहले के टेलीफोन लाइन्स में, टेलीफोन सिस्टम्स में अवेलेबल नहीं था. ISDN is a circuit switch telephone network system, but it also provide access to packet switch networks. सर्किट स्विच क्या है कि हम उसको स्विच कर सकते हैं सर्किट्स के थ्रू, बट ये हमें एक्सेस देता है पैकेट स्विचिंग के लिए भी. पैकेट स्विचिंग क्या है कि हम पैकेट्स की फॉर्म में अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं विद स्पेशल कोडिंग सिस्टम दैट अलाउज डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा. This results in potentially better voice or data quality than an analog phone can provide. It provides a packet switched connection for data in increment of 64 kilobits per second. It provides a maximum of 128 bits per second bandwidth in both upstream and downstream directions. A greater data rate was achieved through channel bonding. Generally, ISDN broad channels of 3 or 4 BRIs are bonded. So ISDN ने हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया. ये एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, बट ये हमें एक्सेस देता है पैकेट स्विच नेटवर्क्स के लिए भी, जिसमें हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. इसके अलावा जो पैकेट स्विच कनेक्शंस हैं उसमें इसने इंक्रीमेंट की 64 किलोबिट्स पर सेकंड. ये मैक्सिमम 128 किलोबिट्स पर सेकंड बैंडविड्थ अलाउ करता है बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डायरेक्शंस में. A greater data rate was achieved through channel bonding. In the context of the OSI model, ISDN is employed as the network in data link and physical layers, but commonly ISDN is often limited to usage to Q.931 and related protocols. These protocols introduced in 1986 are a set of signaling protocols established and breaking circuit switched connections and for advanced calling feature for the user.
ISDN provides simultaneously voice, video, and text transmission between individual desktop video conferencing systems and group video conferencing systems. ISDN जो हमारा मॉडल है वो अवेलेबल है डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर्स में, बट कॉमनली ISDN इज़ ऑफन लिमिटेड टू यूसेज टू Q.931 एंड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स. इसको हम लिमिटेड प्रोटोकॉल्स में यूज़ कर सकते हैं और ये जो अवेलेबल होता है डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर में अवेलेबल होता है. Then we have the ISDN interfaces. So there are 4 types of ISDN interfaces like basic rate interface, primary rate interface, narrowband ISDN and broadband ISDN. So सबसे पहले basic rate. बेसिक रेट क्या करता है? द बेसिक रेट इंटरफेयर यूजेज एग्जिस्टिंग टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक रेट सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड इट यूजेज द एग्जिस्टिंग टेलीफोनिक लाइन्स है, एग्जिस्टिंग टेलीफोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उसको यूज़ करता है. द BRI कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स 2 डेटा और बियरर चैनल्स एट 64 किलोबिट्स पर सेकेंड स्पीड. इट इज़ कॉमनली, इसको जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और होम यूज़र्स. इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज आर द 2 बियरिंग डेटा चैनल्स B चैनल एंड 1 सिग्नलिंग चैनल D चैनल इन द BRI to initiate connection. The B channels operate at maximum of 64 kilobits per channel while the D channel operates at maximum of 16 kilobits per second. द 2 चैनल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इसमें 2 चैनल्स होते हैं, एक B चैनल होता है एक D चैनल होता है. B चैनल डेटा को बियर करने के लिए होता है, D चैनल फॉर सिग्नलिंग चैनल होता है. ठीक है. B चैनल की जो ऑपरेट करता है उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 64 किलोबिट्स पर सेकेंड और D चैनल की जो मैक्सिमम वो होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है ऑपरेट करने की, वो होती है 64 किलोबिट्स पर सेकेंड. ये दोनों चैनल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन चैनल इज़ यूज्ड एज अ TCP IP कनेक्शन टू लोकेशन while the other channel is used to send a fax to the remote location. अगर मान लो इसमें से एक चैनल लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो दूसरे चैनल को हम यूज़ करते हैं कि उस रिमोट लोकेशन पे डेटा को सेंड करने के लिए. In I series, ISDN support basic rate infrastructure. This basic rate interface specifies a digital pipe consisting 2 B channels of 64 kilobyte per seconds each and D channel of 16 kilobits per second. This equals a speed of 144 kilobytes per second. In addition, the BRI service itself requires an operating overhead of 48 kilobytes per second. Therefore, a digital pipe of 192 kilobyte is required. Then we have primary rate interface. Primary rate interface क्या है कि प्राइमरी रेट इंटरफेस इज़ यूज्ड बाय इंटरप्राइजेज एंड ऑफिसेज. ये जैसे कि हमारा बेसिक रेट इंटरफेस था तो उसको हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या होम यूज़र्स के लिए यूज़ करते थे क्योंकि जो उसके चैनल्स की रेंज थी, बैंडविड्थ थी, वो बहुत कम थी, लाइक 64 फॉर B चैनल एंड 16 फॉर D चैनल. बट प्राइमरी रेट जो है उसको हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. प्राइमरी रेट इंटरफेस सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ D चैनल and either 23 or 3 B channels depending on the कंट्री यू आर इन. ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं. उस कंट्री के बेस डिपेंड करने पर इसके जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं. PRI is not supposed on the I series. A digital pipe with 23 B channels and 164 kilobytes per second D channel is present in the usually primary rate interface. 23 B channels of 64 kilobytes per second each and 1 D channel of 64 kilobytes equal 1.536 megabytes per second. The PRI primary rate interface surfaces uses 8 kilobytes per second of overhead also. Therefore, PRI requires a digital pipe of 1544 megabytes per second. Then we have broadband. Broadband क्या है? Narrowband ISDN has been designed to operate over the current communication infrastructure, which is heavily dependent on the copper cable. However, broadband ISDN relies mainly on the evolution of fiber optics. इसके 2 टाइप और होते हैं. नैरोबैंड में क्या है? दिस कैन बी
understood as a telecommunication that carries voice information in narrow band frequency. narrow band में जो डेटा को हम कैरी करते हैं वो narrow band frequency में कैरी करते हैं, and this is actually an attempt to digitalize the analog voice information. और इसके अलावा ये जो डिपेंड करता है ये कॉपर केबल्स पे डिपेंड करता है, जिसमें डेटा सेंड होता है वो कॉपर केबल्स जो मीडियम होता है उसके थ्रू सेंड होता है, जबकि जो ब्रॉडबैंड ISDN है वो रिलाई करता है फाइबर ऑप्टिक्स में. अकॉर्डिंग टू CCITT, ब्रॉडबैंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सर्विस रिक्वायरिंग ट्रांसमिशन चैनल्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग रेट्स ग्रेटर दैन द प्राइमरी रेट. ISDN सर्विसेज, अब इसकी सर्विसेज क्या है, इसकी 3 सर्विसेज ही हमें प्रोवाइड करता है. bearer services, transfer of information, voice data and video between users without the network manipulating the content of that information is provided by the bearer network. ये नेट information को transfer करता है like voice data and video without changing its actual form. There is no need for the network to process the information and therefore does not change the content. इसमें नेटवर्क उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है, और उसको उसी फॉर्म में प्रोसेस करता है. बेयरर सर्विस बिलोंग टू द फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल. बेयरर जो सर्विसेज होती है वो हमारी फर्स्ट 3 लेयर्स में अवेलेबल होती हैं, लाइक इन द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर में. They are well defined in the ISDN standard. They can be provided using circuit switched, packet switched, frame switched और cell switched networks. इसको bearer services को हम circuit switch की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, packet switching की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, frame switching की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, cell switch networks की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. Then we have tele services. In this, the network may change or process the content of the network data. Tele services में chances हैं कि जो हमारा network है वो हमारे डेटा को चेंज कर दे या फिर उसके कंटेंट को प्रोसेस करके आगे सेंड करें. दीज सर्विसेज कोरस्पॉन्ड्स टू लेयर 4 to 7 ऑफ द OSI मॉडल. बेयरर सर्विसेज फर्स्ट 3 सर्विसेज में फॉल करती है, एंड जो मेरी टेली सर्विसेज है वो 4 to 7 की लेयर्स में OSI मॉडल में वर्क करती है. टेली सर्विसेज रिलाइज ऑन द फैसिलिटीज ऑफ द बेयरर सर्विसेज एंड आर डिजाइन टू एकोमोडेट कॉम्प्लेक्स यूजर नीड्स. टेली सर्विसेज को हम बोल सकते हैं कि एडवांस वर्जन है बेयरर सर्विसेज का, और ये जो कॉम्प्लेक्स नीड्स होती हैं यूज़र की उनको फुलफ़िल करने के काम आती है. द यूज़र नीड नॉट टू बी अवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस. टेली सर्विसेज इंक्लूड टेलीफोनी, टेलीटेक्स्ट, टेलीफैक्स, वीडियो टेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. Though the ISDN defines these services by name, yet have to not become standards. Though the ISDN defines these services by name, yet they have not yet become standards. ये सर्विसेज हम सिर्फ यूज़ करते हैं बट अभी तक भी एक स्टैंडर्ड नहीं बना है कि यही प्रोटोकॉल फर्दर यूज़ किया जाए. Then we have supplementary services. Additional functionality to the bearer services and tele services are provided by supplementary services. जो सर्विसेज bearer and tele services कंप्लीट नहीं कर पाती हैं उनको फर्दर उनको प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज. रिवर्स चार्जिंग, कॉल वेटिंग, मैसेज हैंडलिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज विच आर फैमिलियर विद टुडेज टेलीफोन कंपनी सर्विसेज. आजकल जब कॉल वेटिंग मतलब जब कोई फ़ोन करता है तो दूसरे बंदे को कॉल वेटिंग पे बताता है, मैसेज हैंडलिंग, मैसेज सेंडिंग, रिवर्स चार्जिंग, ये सब एग्जांपल हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज के. Principle of ISDN. The ISDN works based on the standard defined by ITU-T, formerly CCITT. The Telecommunication Standardization Sector, ITU-T, coordinates standards for telecommunication on behalf of the International Telecommunication Union and is based in Geneva, Switzerland. The various principles of ISDN as per ITU recommendations are. अब इसके principles क्या हैं? स्विच्ड एंड नॉन स्विच्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना, वॉइस एंड नॉन वॉइस एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना, रिलायंस ऑन 64 किलोबिट्स पर सेकेंड कनेक्शन, नेटवर्क इंटेलिजेंस इन द नेटवर्क, लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एंड वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. सो ओवरऑल ISDN क्या है? ISDN एक मॉडिफाइड वर्जन है क्लासिक टेलीफोन सिस्टम का, कि जब हम पहले सिर्फ वॉइस के फॉर्म में डेटा को सेंड कर सकते थे,
अब ISDN क्या है कि विद द हेल्प ऑफ ISDN हम डेटा को सेंड कर सकते हैं वॉइस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में और सिक्योर फॉर्म में भी हम उसको साथ, मतलब इन सब के साथ में हम उसको सिक्योरली भी सेफ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो फर्स्ट डिफाइन हुआ था ये हुआ था CCITT रेड बुक में 1988 में, या फिर हम बोल सकते हैं ITU-T। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिक टाइप्स होते हैं, जैसे कि बेसिक रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट इंटरफेस, नैरो बैंड ISDN एंड ब्रॉडबैंड ISDN।